नया चैप्टर है आज, लिस्ट मैनिपुलेशन। इससे पहले सेशन में हमने देखा था स्ट्रिंग मैनिपुलेशन। स्ट्रिंग मैनिपुलेशन में हमने वेरियस फंक्शंस देखे और किस तरह से ऑपरेटर अगर हम एसोसिएट करते हैं स्ट्रिंग वेरिएबल को तो डिफरेंट हमें आउटपुट मिलता है। सेम वे अब नेक्स्ट जो है चैप्टर दैट इज लिस्ट मैनिपुलेशन। लिस्ट की जरूरत हमें कब पड़ेगी? If we want to work with the number, then we use integer data type. A equal to 15, A equal to 20.5. If we want to work with the alphabets, then we use a string data type. So when we required both data type at one time, so at that time we required a mixed data type. So for the mixed data type, we can use a list. अब ऐसा नहीं है कि मिक्स डेटा टाइप है तो उसमें मिक्स ही होने चाहिए। लिस्ट में बी कंटेन ओनली नंबर, इट मे बी कंटेन ओनली स्ट्रिंग, और इट मे बी कंटेन बोथ नंबर, स्ट्रिंग, बुलियन, मिक्स डेटा टाइप. So and it's a collection of values. It not contain a single value, it contain a collection of value. As an example, if I want to store 15 values, so I use here A equal to 15. So this 15 value is assigned to A. This 15 value is assigned to A. I want to assign a 20 value. So for that, I need one another variable B equal to 20. I want to assign a name. So I use one another variable a name equal to ABC. कोई भी नाम है ABC. So if I use a list, then I store all the value at one place. So this A is one my list variable, and if I want to store all the value, यहाँ पर जो अभी प्रीवियस जो मैंने बताया उसमें एक सिंगल वैल्यू हम स्टोर करते थे. फॉर दैट आई नीड 3 वेरिएबल्स, A, B, NM, 3 वेरिएबल की हमें जरूरत पड़ी. सो यहाँ पर अगर लिस्ट कंटेनर हमारे पास होता तो हम सारी जो वैल्यू है उसे एक वेरिएबल में पुट अप कर सकते हैं. So list is a container that store multiple value, and this value may be a same value or maybe it's a different value. Maybe it's contain all the string value, maybe it contain all number value, or maybe it contain a mixed value. And through if you want to represent this is a list, so you have to use this bracket. ये ब्रैकेट जो है दैट डिनोट्स इट्स अ लिस्ट. सो लिस्ट क्या है? लिस्ट इट्स अ कंटेनर दैट स्टोर अ मल्टीपल वैल्यू इन वन वेरिएबल. सो दिस इज अ ए एंड दिस ए इज नोन एज अ लिस्ट वेरिएबल. लिस्ट वेरिएबल क्यों? बिकॉज सी हियर वी यूज दिस ब्रैकेट, दिस स्क्वायर ब्रैकेट, and this square bracket that denotes it's a list variable. Why we need a list variable? So when we want to store a multiple value in one variable at one place, so we use list variable. Each value, this is 15 value, 20 value, ABC value. See here we use a different value and we use a different variable here A, B, N. So now यहाँ पर अब सोचो हमारे पास 15 डिफरेंट वैल्यू होती. कोई स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन है, रोल नंबर, नेम, देन 5 सब्जेक्ट के मार्क्स, इंग्लिश, फिजिक्स, देन केमिस्ट्री, CS, देन मैथ्स, फिर टोटल, एवरेज, परसेंटेज, ग्रेड. सो नाउ इतनी वैल्यूज है उस स्टूडेंट की, तो उसके लिए मुझे 10 डिफरेंट वेरिएबल लेने पड़ेंगे. ओके. सो यहाँ पर क्या होगा कि यहाँ पर अगर मैं एस वेरिएबल ले लूँ,
सो एस वेरिएबल में मैं सारी उसकी कोई भी पर्टिकुलर स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन को मैं एट वन प्लेस पर स्टोर कर सकती हूँ. सो दिस लिस्ट इज कॉल्ड सीक्वेंस. So we can store here a multiple value. In a Python, a list is a kind of container. एक तरह का हम कंटेनर ही हम उसे कहेंगे. It's a one kind of container कि जहां पर हम एक से ज्यादा वैल्यू को स्टोर करते हैं. ऐसा नहीं है कि हम वहां पर एक से ज्यादा ही स्टोर कर सकते हैं. हमारा लिस्ट एम्प्टी भी हो सकता है. इफ वी have an empty list, so we denote it like this way. L is my list variable and that having a no value. So this is represented by this way. This is having an empty value because this bracket that denote it's a list, but the value is not inside this bracket, so it's a empty. And if it having a one value, so ये हो गया one value. And if it having a more than one value, then we use a comma separator and we provide a value. So this is a kind of container. It is a kind of container and that contains collections of value. It's contain a various different value and it may be a different kind of value. So it's a collection of any kind of value, mix type of value. Maybe it's a number, maybe it's a string, maybe it's a boolean, maybe it's a complex. A list is a mutable data type. Mutable data type, which means any value from the list can be changed. वो मैं आगे आपको एग्जाम्पल बताऊंगी. स्ट्रिंग इट्स नॉट इट्स इम्यूटेबल. स्ट्रिंग जो कल हमने देखा था, स्ट्रिंग वेरिएबल इट्स immutable data type, and list is a mutable data type. Immutable, that means कि once we define its value can't be changed. And mutable means modifiable, means if I define it, first I create and then after some of the statement, then I want to change the value of this list variable, then it is possible to change because it's support a mutable data type. और उसका एक एग्जाम्पल मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी आगे की स्लाइड में. It's a mutable data type, which means any value from the list can be changed, and for change value, Python does not create a new list. So जो original list है उसी में ही whatever changes you can do, that can be reflected in a original list. But if you want to change in a string which you define and then new changes that comes in a different variable, duplicate variable. अगर आपको changes करने हैं तो आपको दूसरा एक वेरिएबल जो उसका डुप्लीकेट वेरिएबल है उससे लेना पड़ेगा. ओरिजिनल जो वेरिएबल होगा उसमें चेंजेस नहीं होंगे. लिस्ट इज अ सीक्वेंस दैट इज लाइक अ स्ट्रिंग. सीक्वेंस मीन्स वेयर द वैल्यू जो इनसाइड जो वैल्यू होती है दैट वी एक्सेस थ्रू द इंडेक्स, उसे हम सीक्वेंस कहेंगे. सो स्ट्रिंग हमने कल देखा था, स्ट्रिंग के ईच कैरेक्टर को अगर हमें मैनिपुलेट करना है देन वी यूज इंडेक्स. Maybe forward index, maybe a reverse index. So same list and tuple data type is also a sequence, and the elements the value inside the list variable or a tuple variable we can use or we can get through the index. List is a sequence like a string and a tuple, except that list is a mutable while a string and tuple are immutable. Mutable, modifiable, and immutable, not modifiable. In this chapter, we will see the manipulation of list, we will see the creation of list and various operation of a list via built-in function. Now, अभी जैसे मैंने आपको बताया कि लिस्ट वेरिएबल, लिस्ट जो है दैट इज द स्टैंडर्ड पाइथन डेटा टाइप. जैसे इंटीजर नंबर कंटेन करता है, बुलियन ट्रू फॉल्स वैल्यू कंटेन करता है, देन स्ट्रिंग अल्फाबेट्स कंटेन करता है. सो दीज आर द डेटा टाइप. डेटा टाइप दैट मीन्स इट आइडेंटिफाई टाइप्स ऑफ डेटा दैट इज नोन एज अ डेटा टाइप. List is also another data type. It's a standard data type. It is a sequence which can store values. See here values, एक से ज्यादा value.
it can store, it's a sequence which can store a values of any kind. Means this list, this having, see here, this list, this list contain a more than one value. अब ये list है, ये कैसे पता चला? Because see here, ये जो ब्रैकेट यहाँ पर है, ये ब्रैकेट that represent it's a list. ओके आप सी यहाँ पर देखिए, दिस इज अ लिस्ट, दिस सो द स्क्वायर ब्रैकेट, ये भी स्क्वायर ब्रैकेट है. सो जहां स्क्वायर ब्रैकेट होगा दैट इज द लिस्ट. Why we required a list? Because when we want to store a multiple value in a one variable, so we need one container and we use a list. And we can use a tuple also. Tuple is also a list type container. Tuple that use this bracket. If I use here, ये जो 1 2 3 है, यहाँ पर मैं ये ब्रैकेट बना दूं, राउंड ब्रैकेट, then this is the another data type of Python, that is a tuple. उसे tuple कहेंगे. And this it's a square bracket, this is known as a list. List and tuple में difference ये है कि list once defined, it can, the value जो 1 2 3 जो inside लिखी हुई, it can be changed after the creation. But if I use a tuple, then if first I assign it, then the value cannot be changed. Then this list contain a number, floating number, and real number and integer number. See here, this is contain a character constant, this contain a mixed value, alphabets, number, then float value. So this is a mixed value type of list. This contain only a string list. So you can create a list by this way. Maybe it's a only number, maybe it's a only character, maybe it's a only string, or maybe it's a mixed value. In Python, only list and dictionary are a mutable data type. So exam में question आ सकता है कि which Python data types are a mutable data type. So list and dictionary are a mutable data type, and others data types are a immutable data type. Mutable मतलब modifiable, जिसको मॉडिफाई कर सकते हैं, जिसकी वैल्यू को मॉडिफाई कर सकते हैं. एक लिस्ट वेरिएबल क्रिएट करते हैं हम यहाँ पर. L equal to bracket, that means L is a list variable. If I want to know it's a list variable, so I use a type function. Type function is used to know the data type of any variable. So see, this is a list variable. अगर मैं यहाँ पर ऐसे लिखती हूँ, देखो a equal to, now I want to know the type of this data, this variable. So I use here a type function. So it's a string variable. ये जो है, this is a list variable because this bracket is used for a list. If I use this, now this is a tuple variable. This bracket shows it's a tuple variable. So यहाँ पर अगर मैं type function use करती हूँ, so it's a tuple. So if you want to know the types of any variable, then we can use a type function. Now this L equal to bracket, that means इसमें कोई value नहीं है, so it is known as a list, empty list. आप इस तरह से भी empty list को create कर सकते हैं by using list function. So list function अगर मैं देती हूँ, it also create a empty list. If I want to store any value, so I use here a 1, 2, 3. So this is a list and it having a
number list. If I want to a mixed type of value, so I use here 1, 2.5, Raksha. So this contain a mixed value. Now I want to access the value this element. So one value को मुझे access करवाना है लिस्ट में से. Same like a string. This is at store at the 0 index. This element store at the 1 index, and this element store at the 2 index. So if you want to access the Raksha value, ये वैल्यू आपको एक्सेस करवानी है, आगे आपको यूज करना है, तो आपको बताना होगा लिस्ट वेरिएबल की कौन से इंडेक्स है. ये है 0 पर है. ऑलवेज इट स्टार्ट विथ अ 0. इंडेक्स इज ऑलवेज स्टार्ट विथ अ 0 एंड 2. सो यहाँ पर इफ आई वांट टू शो दिस वैल्यू, सो मैं यहाँ पर ये इंडेक्स है उसकी इसको यूज करूंगी, तो मैं लिखूंगी L of 2. तो L of 2 लिखूंगी तो इट गिव्स अ रक्षा. इफ आई वांट टू एक्सेस दिस 2.5, तो मैं क्या करूंगी, मैं L लिखूंगी और उसकी इंडेक्स में लिखूंगी, उसकी इंडेक्स होगी 1. सो L 1. तो दिस वे वी कैन एक्सेस अ element of a list variable to the index. So L of 2, L of 2.5, that means 1. It also support a reverse index, so I can use a L minus 1. L minus 1 same like a string. लास्ट जो इंडेक्स मानी यहाँ से शुरू करेंगे -1, -2 एंड -3. सो लास्ट वैल्यू ऑफ दिस लिस्ट दैट इज दी -1. और आप फर्स्ट वैल्यू जानना चाहते हो तो L0, या फिर हम कहेंगे L -3, सेम लाइक अ स्ट्रिंग. तो आप इस तरह से लिस्ट जो है उसे यूज कर सकते हैं और उसके अंदर जो वैल्यूज है उसे एक्सेस कर सकते हैं बाय यूजिंग द इंडेक्स. मे बी यू कैन यूज अ रिवर्स इंडेक्स और मे बी यू कैन यूज अ फॉरवर्ड इंडेक्स. लिस्ट कैन बी क्रिएटेड, मे बी इट्स एम्प्टी, जो मैंने अभी आपको एग्जांपल में बताया. लिस्ट फंक्शन भी आप यूज कर सकते हैं. एंड दिस लिस्ट हेलो सी, तो दिस लिस्ट फंक्शन, ये लिस्ट फंक्शन क्या करेगा, स्ट्रिंग जो है उसको लिस्ट में कन्वर्ट करेगा. टाइप कास्टिंग मैंने आपको बताया था आगे. टाइप कास्टिंग ये जो फंक्शन होता है, आगे इंटीजर लिखते हैं, आगे फ्लोट लिखते हैं. उसी तरह से सी हियर, अगर मैं आपको कहूँ कि चलो मुझे इसको ये जो है उसको 15 वैल्यू को इंटीजर करके दो, तो आप कौन सा फंक्शन यूज करते हो, इंटीजर फंक्शन. सो ये जो 15 मैंने लिखा है वो इंटीजर में यहाँ पर मुझे नंबर में कन्वर्ट करके देगा. क्यों, ये तो स्ट्रिंग है. सो ये स्ट्रिंग है, उसे अगर मुझे स्ट्रिंग डेटा टाइप को इंटीजर में कन्वर्ट करना है तो मैं यहाँ पर इंटीजर फंक्शन यूज करूंगी. इसे हम टाइप कास्टिंग कहते हैं. सो स्ट्रिंग टू नंबर मानी कन्वर्जन ऑफ वन डेटा टाइप टू अनदर डेटा टाइप, दैट इज नोन एज अ टाइप कास्टिंग. सो स्ट्रिंग में से नंबर कन्वर्ट करना था, मैंने इंटीजर लिखा. मुझे फ्लोट में वो वैल्यू चाहिए, तो मैं यहाँ पर करूंगी इस तरह से, स्ट्रिंग में से फ्लोट में वैल्यू. तो देखिए 15.0. सो स्ट्रिंग टू फ्लोट. सो सेम उसी तरह से अगर मुझे स्ट्रिंग टू लिस्ट में कन्वर्ट करना है, टाइप कास्टिंग करवाना है, सो मैं यहाँ पर यूज करती हूँ लिस्ट. देखिए आप, ये स्ट्रिंग था और उसकी जो वैल्यू है उसको उसने मुझे लिस्ट में कन्वर्ट करके दिया. ये देखिए स्क्वायर ब्रैकेट दैट इज अ लिस्ट. सो सेम अगर मैं हेलो वहां पर पास कर रही हूँ स्ट्रिंग में, तो मुझे इस तरह से हेलो, इस तरह से लिस्ट जनरेट करके देगा. तो लिस्ट फंक्शन दैट इज द टाइप कास्टिंग फंक्शन एंड दैट कन्वर्ट फ्रॉम वन डेटा टाइप टू अनदर डेटा टाइप. सो सेम वे आप इस तरह से भी यहाँ पर यूज कर सकते हैं. देखिए ये जो है मैंने बताया ये टप्पल है बिकॉज इट हैविंग अ राउंड ब्रैकेट.
long list, if it contain a more value, so it's known as a long list. And sometimes list के अंदर list है, ये देखो ये ब्रैकेट है, अब उसके एलिमेंट है, तो ये फर्स्ट एलिमेंट, फिर ये सेकेंड एलिमेंट, फिर थर्ड एलिमेंट देखिए तो थर्ड एलिमेंट अनदर लिस्ट, दैट मीन्स लिस्ट के अंदर लिस्ट है, तो दिस इज नोन एज अ नेस्टेड लिस्ट, इसे हम नेस्टेड लिस्ट कहेंगे। आप लिस्ट जो है उसमें अगर एलिमेंट इनपुट करवाना चाहते हैं, यहाँ देखिए आप इंटीजर लिखते थे, प्रीवियस एग्जांपल में यहाँ लिखते थे ना इंटीजर, इस तरह से n equal to integer, then I ask user to input any value. तो यहाँ मैंने 25 इनपुट किया, सो नाउ n हैविंग a 25 वैल्यू, अब मैं इसका टाइप जान लेती हूँ, तो ये क्या वैल्यू देगा मुझे, ये देखिए इंटीजर वैल्यू दे रहा है, बिकॉज कि ये जो टाइप कास्टिंग इंटीजर हुआ। बट यही स्टेटमेंट में अब मैं अगर आगे लिस्ट लिखती हूँ LIST, मैं यहाँ पर डालती हूँ 258, तो यहाँ देखिए n की वैल्यू हम यहाँ पर पहले टाइप फंक्शन से चेक करेंगे लिस्ट, अब उसके वैल्यू देखेंगे, हमने 258 यहाँ इंसर्ट किया है, अब देखिए हमारा लिस्ट ऐसे बनेगा, n की वैल्यू जो होगी हम ऐसे, एंड फिर उसके बाद अगर मुझे ये वैल्यू को एक्सेस 5 चाहिए मुझे, तो मैं क्या लिखूंगी, n का सेकेंड इंडेक्स, तो n का सेकेंड इंडेक्स मतलब n ऑफ 1, दैट मीन्स 5। तो दिस वे आप लिस्ट के वैल्यू एलिमेंट को एक्सेस कर सकते हैं। जैसे प्रीवियस हमने देखा था, लास्ट सेशन में हमने देखा स्ट्रिंग, उसमें हमने स्लाइसिंग देखी थी, सेम यहाँ पर भी हम स्लाइसिंग को यूटिलाइज करते हैं, सेम लाइक अ स्ट्रिंग। फर्स्ट वी विल सी द सिमिलैरिटी बिटवीन द लिस्ट एंड स्ट्रिंग, कि दोनों में क्या सिमिलैरिटी है, सेम क्या चीज है। लिस्ट इज अ सीक्वेंस लाइक अ स्ट्रिंग, सीक्वेंस मतलब द एलिमेंट ऑफ द लिस्ट और एलिमेंट ऑफ द string we get through the index, so it's a sequence. Tuple is also known as a sequence. List also has an index of each element, जितने elements होंगे ये element, वो सारे elements की एक index होती है, 0 से शुरू होगा, if we start from the first left side, and if we start from the right side then the index is start from with a -1. List also has an index of each of its element. Like a string, list also has a two index, forward index and a backward index. Forward index that is start from the 0 and backward index that is start from the -1 to n. So this is a list, and see here 4 number. I want 4 value, 4. This is the index value. So index to 0, 1, 2, 3 and 4. So vowels is a list variable, and fourth number का जो elements है वो, so the output is a u. If I use a -5, that means output is a, and if I use a -1, that means the last element of the list, that means a u. If I want to know the number of elements available in a list, कितने elements है, so same जैसे कल हमने देखा था लेन फंक्शन स्ट्रिंग का, जैसे st मैं अगर ऐसे लिखती हूँ कि हाउ मेनी नंबर ऑफ कैरेक्टर इन दिस स्ट्रिंग, ये जानना है, तो मैंने कल बताया था वी यूज अ लेन फंक्शन, मैं ऐसे लिखती थी, तो मुझे यहाँ पता चलेगा यस इट्स हैविंग अ 13 कैरेक्टर। लिस्ट जो है, लिस्ट के अंदर कितने कैरेक्टर्स है वो मुझे जानना है, तो यहाँ पर मैं लिखूंगी लेन ऑफ n, सो n के अंदर कितने एलिमेंट्स है, तो 2 5 8 3 एलिमेंट्स है, सो नंबर ऑफ
एलिमेंट्स हमें जानने हैं लिस्ट के, फॉर दैट वी यूज अ लेन फंक्शन। हम लेन फंक्शन का यूज करेंगे। स्लाइसिंग, सेम लाइक अ स्ट्रिंग, जैसे हम स्ट्रिंग में स्लाइसिंग करते थे उसी तरह से हम लिस्ट में भी स्लाइसिंग को एप्लीकेबल कर सकते हैं। दिस इज अ पंकज, पंकज में थर्ड नेम मुझे चाहिए थर्ड कैरेक्टर, सो 0 1 2 एंड 3, सो दिस इज द थर्ड एलिमेंट, सो नेम ऑफ 3 दैट गिव्स अ k वैल्यू, ये मुझे k वैल्यू यहाँ पर देगा। अब मैं यहाँ पर कहूँ कि 2 से स्टार्ट करके 4, लेकिन 4 को इंक्लूड नहीं करना है, सो 2 से स्टार्ट करेंगे तो दिस इज अ 0, दिस इज 1 एंड दिस इज 2, सो इसे हम एक्सट्रैक्ट करेंगे, एक इसको एक्सट्रैक्ट करेंगे। फिर उसके बाद 3, इस रेंज में, ये जो रेंज है उसमें क्या क्या वैल्यू आएगी, उसमें वैल्यू आएगी 2 और उसमें वैल्यू आएगी 3, बिकॉज 4 इट्स स्टॉप वैल्यू, सो इट एक्सक्लूड, सो यहाँ 4 नहीं आएगा, सो दिस 2 वैल्यू एंड दिस इज 3 वैल्यू, सो आउटपुट विल n k of a list, same like a string. डिफरेंस बिटवीन लिस्ट एंड स्ट्रिंग, दोनों में क्या डिफरेंस है? जैसे अभी हमने देखा सिमिलैरिटी, क्या सिमिलर है, स्ट्रिंग में और लिस्ट में क्या सिमिलर है, तो ये हमने देखा कि स्ट्रिंग एंड लिस्ट बोथ सीक्वेंस, दोनों के जो एलिमेंट्स है वी कैन एक्सेस बाय यूजिंग इंडेक्स, दोनों स्लाइसिंग को सपोर्ट करते हैं, दोनों फॉरवर्ड इंडेक्स एंड बैकवर्ड इंडेक्स सपोर्ट करते हैं। तो अब उसमें, अब ये तो हो गई उसकी सिमिलैरिटी कि ओके ये चीज उसमें सिमिलर है। अब मुझे ये जानना है कि उसमें क्या डिफरेंस है दोनों में। तो डिफरेंस जो देखें हम, मेन डिफरेंस बिटवीन दिस लिस्ट एंड स्ट्रिंग, लिस्ट एंड स्ट्रिंग में जो मेन डिफरेंस है दैट इज द इम्यूटेबल एंड म्यूटेबल। स्ट्रिंग जो है दैट इज अ इम्यूटेबल एंड लिस्ट इज अ म्यूटेबल। अब ये म्यूटेबल इम्यूटेबल क्या है? तो म्यूटेबल का मतलब मॉडिफाई करना, एलिमेंट जो है 2 5 8 थे, अब 5 की वैल्यू मैं 6 करना चाहती हूँ, लिस्ट है तो कर सकती हूँ, बट अगर स्ट्रिंग है तो मैं नहीं कर सकती, बिकॉज इट्स पाइथन नॉट सपोर्ट, बिकॉज पाइथन ने उसको इम्यूटेबल बनाया है स्ट्रिंग को, तो वो नहीं कर सकते हम। यहाँ पर देखिए ये एग्जाम्पल से आपको और अच्छे से समझ में आएगा। आपने अगर स्ट्रिंग, एक स्ट्रिंग ली है, उसकी वैल्यू ली है AEIOU, अब देखिए यहाँ पर ये जो है वो 0 लोकेशन पर होगा, ये होगा 1 लोकेशन पे, देन आई ये 2 लोकेशन, ओ जो है वो 3 लोकेशन पे एंड यू है वो 4 लोकेशन पे। अब यहाँ पर मैं 2 नंबर की वैल्यू को एक्सेस करना चाहती हूँ, मैंने यहाँ लिखा स्ट्रिंग 2, दैट मीन्स दिस स्ट्रिंग और ये 2 मतलब आई, ये वैल्यू, तो ये मुझे मिलेगी। अब मैं इसको जो है स्मॉल आई है उसको कैपिटल करना चाहती हूँ, तो मैं क्या करूंगी, तो मैं लिखूंगी स्ट्रिंग 2 इक्वल टू कैपिटल आई, दैट मीन्स ये इक्वल मैं असाइन कर रही हूँ यहाँ पर, एंड आई वांट टू चेंज दिस स्मॉल आई विथ अ कैपिटल आई, सो यहाँ मैंने असाइनमेंट ऑपरेटर दिया, राइट हैंड साइड पर मैं न्यू वैल्यू दे रही हूँ और ये जो है मेरा वेरिएबल, तो मुझे पाइथन है वो कहेगा इट्स अ टाइप एरर। वाई? str object does not support assignment, मतलब असाइनमेंट सपोर्ट नहीं कर सकता बिकॉज इट्स अ इम्यूटेबल। बट वही चीज अगर मैं लिस्ट के साथ करना चाहती हूँ, मेरे पास यहाँ लिस्ट है और लिस्ट में सेम ये है 0 लोकेशन पे, ये 1 लोकेशन में है, ये 2, ये 3 एंड ये 4, तो आप यहाँ पर देखिए ये इस तरह से एलिमेंट आपको मिलेंगे, ये जो होंगे ये 0 लोकेशन पर यहाँ मिलेगा, ये 1 लोकेशन में होगा, ये जो एलिमेंट होगा वो 2 लोकेशन पर होगा, इंडेक्स में बात कर रही हूँ, एंड 3 एंड 4। सो st इज वेरिएबल, सो st ऑफ 2 मैं बताऊंगी, तो st दिस इज स्टोर इन st, सो मैं st ऑफ 2 कहूंगी तो 2 मतलब दिस वन, सो st ऑफ 2 जो है वो मुझे i मिलेगा। नाउ आई चेंज दैट वैल्यू विथ अ कैपिटल आई, अब मैं यहाँ इक्वल कर रही हूँ,
तो इक्वल करूंगी तो वो क्या करेगा, जो ओरिजिनल मेरा लिस्ट है उसमें उसको चेंज कर देगा। देखो इसने एक्सेप्ट कर लिया। बट अगर ये स्ट्रिंग है तो वो मना करेगा, वो नहीं करने देगा। वाई? बिकॉज this string, this is a standard Python data type and this is a immutable, so Python not allow you to reassign it, but लिस्ट में आप उसे रीअसाइन कर सकते हैं। ईच एलिमेंट, जितने एलिमेंट है उसको नई वैल्यू आप दे सकते हो। ओरिजिनल जो लिस्ट है उसमें आप उसको चेंज कर सकते हो। वाई? बिकॉज इट्स अ म्यूटेबल डेटा टाइप। मानिए मैंने एक बार उसको डिफाइन कर दिया और फिर उसके बाद उसके वैल्यू को चेंज करना है तो मैं कर सकती हूँ। ये एक लिस्ट जो है वो है ऐसा म्यूटेबल, एंड दूसरा जो है वो डिक्शनरी। Dictionary, it's also mutable data type, means once we define and after that we can change the value of that data type. Traversal in a list, same like जैसे हम स्ट्रिंग में ट्रावर्स करते थे, जैसे मैंने कल बताया कंप्यूटर, तो कंप्यूटर CON टाइप